Hello, good morning, friends. I, PG Bhaviskar, welcome you in the presentation of Class 9 Mathematics, your chapter number 3 Coordinate Geometry. Friends, in a previous session, we already studied what in by Cartesian planes and their parts. Okay, now today we are going to study some example based on this previous topic. So your exercises 3.2. So example is write the answer each of the following questions. नीचे दिए क्वेश्चन का आंसर देना है. क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है उसके जवाब हमें देना है. तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. Cartesian plane में जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो दर्शाई जाती है उसका नाम हमें बताना है. ओके, तो इन अ कार्टेशियन प्लेन we have drawn here, this is a horizontal line and this is a vertical line. These two lines are perpendicular each other at origin and this horizontal line is called x-axis. ये जो horizontal line होती है उस line को बोलते हैं x-axis and this vertical line, this line is called y-axis. The vertical line is called y-axis. So we get answer here. The horizontal line that is drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. ये Cartesian plane में कोई भी पॉइंट की पोजीशन दिखाने के लिए हम जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. तो इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं. ओके, सेम वे द वर्टिकल लाइन दैट इज ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन. ये कार्टेशियन प्लेन में ये जो वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट? दिस लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस. So we get the answer of this question. Okay, if any doubt? Now let us see second example. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? The point where these two lines intersect. Okay, your question is what? What is the name of each part of the plane formed by these two lines? हम लोग कार्टेशियन प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता है, that is called x axis. इसको हम लोग x axis बोलते हैं. and this vertical line, this is called the y axis. Now these two axes divide this plane into four part. ये जो दोनों एक्सिस है, ये प्लेन जो है आपका, your board is a plane, this paper is your plane. If we draw the two lines, horizontal line and vertical line, then the plane is divided into four part and each part is called quadrant. और हर एक पार्ट को क्या बोलता है? क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे ये जो चार्ट फोर पार्ट बने, दिस इज 1 2 3 and 4, ईच इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं. द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन that is formed by x-axis and y-axis is called quadrant. And the point where the x-axis and y-axis intersect is called origin. और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ओरिजिन. दिस इज कॉल्ड ओरिजिन. एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन हमें पता है क्या होता है? 0 0. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0. द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिसेस इज कॉल्ड origin and coordinates of origin are 0 0. Okay, now next question is example number 2. See the figure. We are already given a figure here. Write the following. और उस फिगर दिया गया है और हमें कुछ पॉइंट दिए, उसका आंसर हमें देना है, फॉलोइंग हमें लिखना है. तो योर फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट इज, इन दिस फिगर व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी? इस फिगर में बी के कोऑर्डिनेट हमें बताना है. इन दिस फिगर वेयर इज योर बी? In this figure, this point, this is your point, this point is your B point. We have to find the coordinates of this point B. Now, first we will find x coordinate. X, what is my x coordinate? Yesterday we have seen, in a previous session we have seen
x coordinate. What is meant by x coordinate? X coordinate means what? Distance of the point from y axis. Distance of the point from y axis. Now, what is the distance of the point from this y axis? So this is your distance. Actually, this distance is nothing but this distance. But this distance is how many unit? This distance is 5 unit. That means this point is 5 unit away from the y axis. That is distance of the point from the point to y axis is 5 unit. But it is along a negative direction of x axis. It is along what? Negative direction of x axis. That's why x coordinate of point B is a minus 5. So we get x coordinate of point B is here minus 5. Correct? Now we want to find here y coordinate. Y coordinate means what? Distance of the point from x axis. Now this is your point B, and this point, distance of the point B from y axis is nothing but from x axis is nothing but this distance. But this distance is nothing but this distance, and this distance is how many unit? This is your 2 unit distance. This distance is your 2 unit. That is nothing but this distance. Okay, and this distance is along a positive direction of y axis. ये जो distance है along a positive direction है, so that's why y coordinate of this point is here 2. So we get y coordinate is 2. So therefore coordinates of B are minus 5, 2. We get the coordinates of B are minus 5 and 2. So therefore coordinates of B minus 5 and 2. Okay, are you understand? Now coordinates of point C. Now we will see the coordinates of point C. Where is your point C? Listen. In this plane, your point C is here. This is your point C. This is your point C. What are the coordinates of this point C? Now see, first we point x coordinate. Here x coordinate is what distance of the point from y axis. ये जो point है y axis से कितना distance पे है? तो this is nothing but this distance. Okay, but actually this is nothing but this distance. Or it is how many unit? It is 5 unit. That means this point C is a 5 unit from y axis. ये जो point C है y axis से कितना unit है? 5 unit है. और this distance is along a positive direction of x axis. और ये जो डिस्टेंस है along a positive direction of x axis है. That's why x coordinate of this point C is what? Plus 5 यानी कि 5. So we get the x coordinate of point C is a 5. Okay. Now we want to find y coordinates. अभी हमें x coordinate 5 पता हो गया. Y coordinate find out करना है. तो y coordinate means distance of this point C from x axis, and this is nothing but this distance. But actually this distance is nothing but this. And this is how many unit? This is actually 5 unit. This is also actually 5 unit. And this is along a negative direction of y axis. So therefore its y coordinate is a minus 5. So therefore we get the coordinates of C are x coordinate 5, y coordinate is what? Minus 5. So we get the coordinate of C is 5 minus 5. Okay. Now third is the point identified by the point minus 3 minus 5. हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पॉइंट है माइनस 3 माइनस 5 ये कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई करता है. तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका माइनस 3 है. x कोऑर्डिनेट माइनस 3 मीन्स द पॉइंट विच इज 3 यूनिट फ्रॉम y axis. Okay, and it is along a negative direction. It is along a negative direction of y axis. तो x coordinate minus 3 है. This is your minus 3. Okay, along negative direction of x axis 3 unit जाना है. Okay, and y coordinate is minus 5. So minus 5 means distance of the point from the x axis is nothing but this distance, that is nothing but this. Okay, and it is a minus 5. So therefore that means this is your point is E. This point E is a 3 unit. Okay, 3 unit from x axis, and it is along negative direction. So its coordinate is minus 3, correct? And the point E is a 5 unit. Note again, listen. Yes, x coordinate is here minus 3. X coordinate is minus 3. Y coordinate is here minus 5, correct? X is minus 3. तो यह x एक्सिस के ऊपर ये जो माइनस 3 है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. y कोऑर्डिनेट अपना माइनस 5 है, तो y कोऑर्डिनेट y एक्सिस के ऊपर माइनस 5 से
ये आप ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वाई एक्सिस को, और ये एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते, दिस पॉइंट इज नथिंग बट योर -3 -5. दैट मीन्स coordinate coordinate of point E are -3 -5. That means -3 -5 is a point actually E. Therefore, the point E identified. So therefore, the point E identify the coordinates -3 -5. तो ये जो कोऑर्डिनेट आपका ये पॉइंट आइडेंटिफाई करता है कोऑर्डिनेट्स -3 -5. ओके, नाउ वन मोर इज द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4. एक्स कोऑर्डिनेट आपका 2 है, वाई -4 है. तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये आपका एक्स एक्सिस के ऊपर 2 है, वहां से क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ओके, और वाई कोऑर्डिनेट आपका -4 है, तो वाई एक्सिस के ऊपर ये -4 है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड इसके कोऑर्डिनेट है आपके -3 -5. लेकिन दिस पॉइंट इज नथिंग बट विच पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट आपका कौन सा है, दिस इज पॉइंट इज योर जी. सो दैट मीन्स द पॉइंट जी आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स, सॉरी दैट मीन्स द पॉइंट जी जो है यहाँ पे, द पॉइंट जी आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स 2 -4. तो ये जो 2 -4 है, ये जी पॉइंट आइडेंटिफाई करता है. तो इसी तरह हम लोग ग्राफ से ये क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन, द एब्सेसा ऑफ पॉइंट डी. एब्सेसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी. तो यहाँ पे ये आपका डी पॉइंट, ये डी पॉइंट आपका, उसका एब्सिस यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस. तो ये पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, और ये आपका 6, दिस इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, दैट इज योर 6 यूनिट, बट इट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन. सो देयरफॉर इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज अ +6 यानी कि 6. सो x coordinate means abscissa. Therefore abscissa of point D is what, 6. Therefore abscissa of point D is 6. Abscissa of point D is here 6. We get answer. Abscissa of point D यानी कि x coordinate is 6. Next is the ordinate of point H. Ordinate means y coordinate. अभी हमें H जो पॉइंट है उसका y coordinate हमें बताना है. तो in this figure where is H? This is your point H. See here in the figure, this point is your H. उसका y कोऑर्डिनेट निकालना हमें. y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस. तो ये जो पॉइंट है x एक्सिस कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, एंड दिस इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, और दिस इज हाउ मेनी यूनिट, दिस इज अ 3 यूनिट डिस्टेंस. सो दैट मीन्स दिस पॉइंट इज 3 यूनिट फ्रॉम द x एक्सिस, बट दिस डिस्टेंस इज अलोंग अ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. लेकिन ये जो डिस्टेंस है अलोंग अ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है. सो देयरफॉर इट्स साइन विल बी नेगेटिव. So therefore y coordinates या ordinate of point H is what, -3. So we get ordinate of point H is a -3. Okay, now the coordinates of point L. Now we will say what are the coordinates of point L. Now in figure, what is the where is L? Here, this is the your L, and this point L is on the y axis. Okay, we want to find both coordinate. First we will tell x coordinate. So x coordinate means what, distance of the point from y axis. अभी ये जो पॉइंट है ऑलरेडी y axis है, तो y axis और वो पॉइंट यानी कि सेम पॉइंट है. ओके, सेम कोइंसाइड है, y axis के ऊपर ही वही पॉइंट है. तो दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड y axis हियर 0. इसका मतलब पॉइंट और y एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0 है. सो दैट वाई इट्स x कोऑर्डिनेट इज 0. x कोऑर्डिनेट इज 0. नाउ वी विल फाइंड द y कोऑर्डिनेट्स. अभी y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है. y कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस. तो ये जो पॉइंट आपका है उसका y एक्सिस से डिस्टेंस ये, यानी ये आपका कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, एंड इट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. सो इट्स y coordinate is positive. So that is y coordinate is 5. So coordinates of this point is a 5. Coordinates of y coordinates of this point is 5, and therefore coordinates of C, coordinates of EL are 0 and minus, sorry, 0 and plus 5, 0, 5.
0, 5. The coordinates of point L is equal to 0, 5. Okay. Now next is the coordinates of point M. Now in figure, where is M? Check here. This M is here and this point L is on the x-axis. This point M is on the x-axis. And we know that every y coordinate on x-axis is 0. इसका मतलब इसका जो y coordinate क्या होगा ये तो 0 होगा. No problem because distance of the point from x-axis is 0. So y coordinate 0. Now x coordinate. X coordinate means distance of the point from y-axis. ये जो point है ये x-axis के ऊपर है इसका x-axis y-axis से distance यानी कि this distance. And this distance is nothing but how many unit? 3 unit. But it is along negative direction. लेकिन ये जो distance है along negative direction of x-axis है. So therefore it x coordinate is -3. So we get x coordinate of point M is -3 and y coordinate is 0. X coordinate is -3 and y coordinate is 0. So therefore the coordinate of M -3, 0. In this way we will find the coordinates of the point from the graph. Now let us, next topic is plotting the point in the plane. Its coordinates, where if its coordinates are given, यदि हमें coordinate दिए जाते हैं तो how to plot this point, तो point ग्राफ पेपर के ऊपर किस तरह प्लॉटिंग करना है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी 3, 5. हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं. ये जो एक पॉइंट है 3, 5, ये 3, 5 पॉइंट जो है ये ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉटिंग करना है तो किस तरह करना है. ओके, लेट अस सी. वी वांट टू प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन यानी कि ग्राफ के ऊपर. वी ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिसेस. दैट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन. इसका मतलब हम देख ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन यानी कि वाई एक्सिस ड्रॉ करना है. एंड चूज योर यूनिट सच दैट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द बोथ एक्सिस. दोनों एक्सिस के ऊपर क्या होगा ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेमी. इसी तरह यानी कि हमने 0 राइट साइड में 1 2 2 1 2 3 5 पॉजिटिव इंटीजर है, लेफ्ट साइड में इधर नेगेटिव इंटीजर है. उसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. एंड बिलो द ओरिजिन नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन. तो इसी तरह ये दोनों प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करना है, दोनों एक्सिस ड्रॉ करना है और ये सूटेबल स्केल लेना है 1 सेमी इज इक्वल टू 1 यूनिट. ओके, नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 3, 5 टेल अस दैट. ये जो कोऑर्डिनेट क्या बताता है, टेल अस दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, along पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट. ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका 3 है. ये एक्स कोऑर्डिनेट 3 का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस along a positive direction of y axis. Along a positive direction of y axis is 3 यूनिट. यानी कि ऐसा जो पॉइंट जो y एक्सिस से 3 यूनिट है, कितना यूनिट है, सॉरी एक्स एक्सिस y एक्सिस से 3 यूनिट है, तो ये y एक्सिस से 3 यूनिट इधर है. ओके, along a पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यानी कि ओरिजिन से हम लोग 3 यूनिट जाना है. ओके, along a पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, इसलिए we have from this origin on x axis we have to go 3 unit and mark here point A. ये point mark करना है. Okay, along the positive x axis is 3 unit and the distance of the point from x axis along the positive y axis is 5 unit. ये जो 3 पॉइंट है इसका मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 3 है, इसका मतलब वो पॉइंट y एक्सिस से 3 यूनिट है along a पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. y कोऑर्डिनेट 5 है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज 5 यूनिट अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. ये इसका मतलब है. फिर से मैं बोल रहा हूं, दिस पॉइंट 3, 5 का मतलब है ये कोऑर्डिनेट से इसका मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट उसका 3 है प्लस 3 है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज 3 यूनिट और इसका साइन प्लस है, इसका मतलब इट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ओके, इसका y कोऑर्डिनेट 5 है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस 5 यूनिट है, लेकिन ये प्लस साइन है, दैट मीन्स इट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये इसका मतलब है. ओके, नाउ स्टार्टिंग अभी कैसा ड्रॉ करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है, वी काउंट 3 यूनिट along positive direction of x because its x coordinate is 3. So from this origin we have to go 3 unit along positive direction of x axis. इसका x कोऑर्डिनेट +3 होने के कारण ये आपका जो ओरिजिन है, ओरिजिन से x एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है. यहाँ पे मार्क करना है पॉइंट ए. ओके, मार्क द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ए. नाउ फ्रॉम पॉइंट ए, अभी ये जो पॉइंट एस है, y कोऑर्डिनेट आपका 5 है, तो स्टार्ट फ्रॉम ए वी मूव द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. ये पॉइंट ये से पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव इधर है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना यूनिट जाना है, 5 यूनिट जाना है. 5 यूनिट जाने के बाद ये जो पॉइंट मिलेगा, दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट 35. दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट 35. तो इसी तरह हम लोग ये पॉइंट प्लॉटिंग करना है. ओके, नाउ again starting from the origin O, we count 3 unit on the positive direction of x-axis, mark the corresponding point here A. Okay, now starting from A, we move in a positive direction of y-axis and count 5 unit because y coordinate is 5, so count 5 unit and mark the corresponding here P, and therefore coordinates of P are here 3, 5. You see that the distance of P from y-axis is 3 unit. डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ये y एक्सिस से कितना यूनिट है, यानी कि ये डिस्टेंस आपका 3 यूनिट है, 3 यूनिट. एंड फ्रॉम द x एक्सिस, और x एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट है. हेंस P इज अ पोजीशन ऑफ पॉइंट. सो देयरफॉर दिस P इज अ पोजीशन ऑफ पॉइंट. दिस P is a position of point. Note that P lies in the first quadrant since both the coordinates of P are positive. ये जो पॉइंट P आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट आपके पॉजिटिव प्लस प्लस है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ओके, तो इसी तरह हम लोग कोई भी पॉइंट प्लॉटिंग कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट सेकंड पॉइंट. नाउ वी वांट टू प्लॉट द पॉइंट हियर 5u - 4. ये पॉइंट हमें प्लॉटिंग करना है. वी वांट टू प्लॉट द पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन. तो फर्स्ट वी ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज. सेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए एट ओरिजिन, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना है. चूज अवर यूनिट्स सच दैट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस. दोनों एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट चूज करना है. नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमारे 5u - 4. अभी ये 5u - 4 का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट उसका 5 है, एक्स कोऑर्डिनेट 5, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज अ 5 यूनिट, एंड इसका साइन प्लस है, दैट मीन्स इट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट जाना है. ओके, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपका -4 है. -4 का मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंड इट इज अ नेगेटिव डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, लेकिन माइनस साइन होने कारण ये वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है. ओके, तो ये अभी पॉइंट किस तरह प्लॉटिंग करना है, अभी 5u 4 दिखाना है. तो इसलिए फ्रॉम दिस ओरिजिन एक्स कोऑर्डिनेट आपका 5 है, सो वी हैव टू गो 5 यूनिट फ्रॉम दिस ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस अलोंग प्लस साइन है, इसलिए अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन. तो ये ओरिजिन से आप लोग एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट जाना है, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और +5 इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में. तो 5 यूनिट जाने के बाद मार्क हियर पॉइंट B. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट B वी हैव टू गो, योर y कोऑर्डिनेट इज -4, सो गो हाउ मेनी यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. ये नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि नीचे आना है, तो ये पॉइंट से नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे आना है. ओके, कितना यूनिट्स, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 4 है, 4 यूनिट. ये निगेटिव का मतलब है निगेटिव डायरेक्शन में यानी कि नीचे आना. ओके, 4 यूनिट आना जाना है. 4 यूनिट आने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा पॉइंट Q, एंड दिस पॉइंट Q मीन्स योर 5u - 4. So therefore this point P represent 5u - 4. Okay, let us say again. Your coordinate is
coordinates of point P are 5u minus 4. So from this origin, starting from the origin O, we count 5 यूनिट. यहाँ से 5 यूनिट काउंट कर रहे हैं. 1 2 3 4, यहाँ पे 5u. ओके, 5 यूनिट काउंट करने के बाद अलॉन्ग ये कहा जाना है, इसका कोऑर्डिनेट साइन प्लस है, इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है. यदि निगेटिव है तो इधर निगेटिव साइड में जाना है. ओके, लेकिन प्लस साइन है, इसलिए हम लोग ओरिजिन से 5 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे. तो वहां पे आपको मिल रहा है पॉइंट बी. ओके, अभी आपका y कोऑर्डिनेट -4 है. माइनस है इसलिए निगेटिव डायरेक्शन, यानी कि नीचे, ये निगेटिव डायरेक्शन है. प्लस होता तो हम लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन माइनस है तो नीचे जाएंगे हम लोग, ये पॉइंट बी से. ओके, now starting from this B, we move negative direction of y-axis. We move negative direction of y-axis and count how many units? 4 units. यहाँ से B से आप लोग नेगेटिव डायरेक्शन में काउंट करके 4 यूनिट जाएंगे. 1 2 3 4. ओके, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग 4 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में, काउंट 4 यूनिट एंड मार्क दिस पॉइंट Q. और यहाँ पे ये पॉइंट Q मार्क करना है. एंड दिस पॉइंट Q इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट 5u minus 4. सो यू सी दैट द डिस्टेंस ऑफ Q. अभी देखिए ये पॉइंट Q जो है ये 5 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस है कि नहीं. ये 5 यूनिट डिस्टेंस है, देखिए 5 यूनिट है एक्स एक्सिस से, 5 यूनिट है. ओके, और यही पॉइंट वाई एक्सिस से कितना यूनिट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है तो 5 यूनिट है. एक्स कोऑर्डिनेट उसका 5 है, तो ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से 5 यूनिट है और एक्स एक्सिस से 4 यूनिट है. Okay, we see that the distance of Q from y-axis is 5 unit and from the x-axis is 4 unit. ये पॉइंट जो है y-axis से 5 यूनिट है बिकॉज x कोऑर्डिनेट 5 है, एंड x-axis से ये 4 यूनिट है बिकॉज y कोऑर्डिनेट 4 है. ओके, सिंस Q is the position of position of the point, note that Q कौन से क्वाड्रेंट में? Q lies in the 4th quadrant. This is your 4th quadrant. सिंस इस x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है प्लस है और y कोऑर्डिनेट माइनस है, और जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस और y कोऑर्डिनेट माइनस होता है ये पॉइंट आपका 4th क्वाड्रेंट में होता है. ओके, सो दिस पॉइंट इज लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट. सो इन दिस वे वी विल प्लॉट द पॉइंट. ओके, नाउ वी प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर. या लोकेट द पॉइंट 5 0 0 5 2 5u 5u 2 -3 5u -3 5u 5u -3 and 6 1 in the Cartesian plane. तो पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट है योर 5u 0. हम लोग 5u 0 पॉइंट प्लॉटिंग करने जा रहे हैं. वी विल प्लॉट पॉइंट 5u 0. तो 5u योर x कोऑर्डिनेट 5u, x कोऑर्डिनेट प्लस 5u है, तो फ्रॉम दिस ओरिजिन वी हैव टू गो अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन. प्लस साइन, एक्स कोऑर्डिनेट का प्लस साइन है इसलिए हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, और एक्स कोऑर्डिनेट 5 है तो कितना यूनिट जाना है? 5 यूनिट. तो दिस 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट. सो वी गेट हियर, मार्क हियर दिस पॉइंट ए. इसको ये पॉइंट मार्क कर सकते हैं. ओके, नाउ योर y कोऑर्डिनेट इज 0, तो फ्रॉम दिस पॉइंट ए वी हैव टू गो 0 यूनिट. 0 यूनिट मीन्स सेम पॉइंट, तो दिस इज सेम पॉइंट. सो दिस पॉइंट इज योर required point 5 0. So this is your point 5u 0. Okay, so this is your point 5 0. फिर से बोल रहा हूं, इसका x कोऑर्डिनेट प्लस 5 है, तो फ्रॉम दिस ओरिजिन वी हैव टू गो 5 यूनिट अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन. तो ये 5 यूनिट जाने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट मिलता है. ओके, और ये जो पॉइंट अभी y कोऑर्डिनेट 0 है तो उसका 0 यूनिट डिस्टेंस जाना है, यानी कि सेम पॉइंट. So this is your required point. We can say here maybe A, और इसके coordinate है 5u 0. So we get this is your required point 5u 0. Second is 0 5u. आपका x coordinate 0 है. x coordinate in means origin से पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 यूनिट जाना है, यानी कि सेम पॉइंट आ गया. ओके, उस पॉइंट से अभी y कोऑर्डिनेट 5 है तो उस पॉइंट से हम लोग 5 यूनिट जाना है, और y कोऑर्डिनेट प्लस 5 है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट जाना है. तो इसका मतलब y एक्सिस के ऊपर हम लोगों को 5 यूनिट जाना होगा. सो दिस इज योर पॉइंट एंड दिस इज योर पॉइंट से B 0 5u. सो दिस इज पॉइंट योर B 0 5, सेकंड पॉइंट 0 5u. नाउ थर्ड पॉइंट इज योर 2 5u. x कोऑर्डिनेट 2 है प्लस 2 है, तो ओरिजिन से 2 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है. ओके,
फ्रॉम दिस पॉइंट योर वाई कोऑर्डिनेट इज 5 प्लस 5 है, इसलिए ये पॉइंट से हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ 5 यूनिट जाना है, यहाँ पे 5 यूनिट जाना है. सो दिस पॉइंट इज योर 2 5. दिस पॉइंट इज योर व्हाट 2 5. तो यहाँ पे आपका ये 2 5 कोऑर्डिनेट होगा. फिर से बोल रहा हूँ मैं, 2 5 दिखाने के लिए हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट 2 है यानी कि +2 है, तो ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से हम लोग 2 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जाएंगे. यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, यह पॉइंट आप लोग P बोल सकते हैं. ओके, अभी y कोऑर्डिनेट आपका 5 है, तो ये P पॉइंट से y कोऑर्डिनेट 5 यानी कि +5 है, तो हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में जाएंगे और कितना यूनिट 5 यूनिट. तो यहाँ पे जाने के बाद ये जो पॉइंट मिलेगा, दिस इज योर पॉइंट C and coordinates of C are 2 5. So we get this is the point your 2 5. Okay, now your next point is 5 2. X coordinate plus 5 है, so from this origin we have to go 5 unit along x axis. प्लस 5 होने के बाद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में 5 यूनिट हम गए. तो यहाँ पे आपको सपोज पॉइंट मिलता है Q. ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट Q, अभी y कोऑर्डिनेट आपका 2 है, तो ये Q से हम लोग 2 पॉइंट और +2 है, इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट जाना है, तो 2 यूनिट गए. तो वी गेट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज योर, सपोज वी कैन से D and its coordinates are 5u2. Coordinates are 5u2. So in this way we get a point 5u2. Next is -3 5. Now see here, your x coordinate is -3. x coordinate आपका -3 है, इसका मतलब ओरिजिन से 3 यूनिट, साइन माइनस है इसलिए निगेटिव डायरेक्शन में जाना है, तो ओरिजिन से निगेटिव डायरेक्शन में हम लोग 3 यूनिट जाएंगे, तो यहाँ तक 3 यूनिट. ओके, say this point is any r. Okay, now its y coordinate is 5. y coordinate 5 यानी कि +5 है, तो from this point r we have to go along a पॉजिटिव डायरेक्शन, प्लस साइन होने के कारण पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि ऊपर जाना है, कितने यूनिट 5 यूनिट, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट -3 5. This is your required point -3 5. So this point is your -3 5. Okay, now next is -3 -5. -3 -5. X coordinate -3 है, from this origin along the negative direction, इसका साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट जाना है, तो वी गेट दिस पॉइंट से R, ये पॉइंट R मिलेगा यहाँ पे. ओके, from this point R, now here y coordinate is -5, so we have to go, नेगेटिव साइन है इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में जाना है यानी कि नीचे आना है. हाउ यूनिट्स 5 यूनिट, तो ये पॉइंट R से 5 यूनिट नीचे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में जाना है, so we get this point and this point is your -3 -5. So in this way we get your point -3 -5. One more 5u. Next point is 5u -3. Next point is your 5u -3. X coordinate is your 5u. X coordinate 5u plus 5u. So from this origin along x axis, positive direction of x axis. From this origin along a positive direction of x axis कितना यूनिट जाना है 5 यूनिट, तो पॉजिटिव डायरेक्शन 5 यूनिट, यहाँ पे आपको पॉइंट मिलता है सपोज S. अभी y कोऑर्डिनेट -3 है, माइनस होने के कारण नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में जाना है यानी कि नीचे आना है, कितना यूनिट 3 यूनिट, तो ये पॉइंट 5 से 3 यूनिट नीचे आना है, सो वी गेट दिस पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट एंड सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट S, दिस पॉइंट इज योर 5u -3. ओके, same way next point is your 6 1. 6 1, x coordinate is 6, तो x coordinate 6 है, that means from this origin we have to go 6 unit along positive direction of x axis. origin से positive direction में ये यहाँ पे suppose 6 है, ओके ये 6 है, तो positive direction ये origin से positive direction of x axis में 6 यूनिट जाना है. अभी y कोऑर्डिनेट आपका 1 है यानी कि +1 है, तो ये पॉइंट से 1 यूनिट आप लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस जाना है, सो वी गेट हियर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज योर 6 1. सो इन दिस वे वी विल प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन. ओके, नाउ नोट दैट हियर in the example above you see that
50 and 05 are not at the same position. 50 और 05 हमने देखा था ग्राफ पेपर के ऊपर. ये जो ग्राफ पेपर है 50, ये आपका पॉइंट जो है 50 है. दिस इज योर पॉइंट 50 और यहाँ पे आपका पॉइंट है 05. ये 50 यहाँ पे, ये 05 है. तो ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है क्या? सेम नहीं, उनकी पोजीशन अलग है. ये एक जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है. सो दिस आर नॉट द सेम. सो 05 एंड 50 आर नॉट द सेम. ओके. सिमिलरली उसी तरह 52 या 25 भी डिफरेंट पॉइंट्स है. सिमिलरली 52 या 25 आर आल्सो डिफरेंट. एंड आल्सो -35 और 5-3 आर डिफरेंट पोजिशन. यानी कि एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल की पोजीशन अलग अलग है, तो वो डिफरेंस होती है. सो बाय टेकिंग अ सेवरल सच एग्जांपल यू विल फाइंड दैट, ये इससे हम क्या बोल सकते हैं, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स और वाई यदि सेम नहीं है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ देन द position of xy in a Cartesian plane is different from the position of yx. तो x और y यदि अलग अलग है तो एक्स वाई और वाई एक्स ये दोनों पॉइंट की पोजीशन जो है अलग अलग होगी. ओके. इफ वी इंटरचेंज द कोऑर्डिनेट्स x एंड y, द पोजीशन ऑफ yx विल डिफर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ xy. यदि हम लोग कोऑर्डिनेट चेंज कर देते हैं, x कोऑर्डिनेट की जगह y लिखते हैं, y की जगह x लिखते हैं, तो उनका पोजीशन अलग अलग होता है. इसलिए हम लोग ये केयर करना है कि x कोऑर्डिनेट फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो हमेशा ये कोऑर्डिनेट पेयर में हम लोग लिखते हैं, तब पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, दूसरा पॉइंट जो है y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है. दिस मीन्स दैट द ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इम्पोर्टेंट इन एक्स वाई. इसलिए इसमें ये जो ऑर्डर है एक्स वाई की इसी तरह लिखना इम्पोर्टेंट है. ये यदि आप लोग वाई एक्स लिखते हैं तो उसका पोजीशन चेंज हो जाता है. सो देयरफॉर एक्स वाई इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर. इसीलिए ये एक्स वाई एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर. कार्टेशियन पेन में इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर. द ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई इज नॉट सेम, नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर वाई एक्स. ऑर्डर पेयर एक्स वाई और ऑर्डर पेयर वाई एक्स आर नॉट इक्वल. ये इक्वल नहीं होते इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई. एक्स और वाई इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं. यदि दोनों इक्वल है तो वो इक्वल हो सकता है. ऑल्सो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू वाई. यदि एक्स और वाई सेम है तो ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज सेम एज ऑर्डर पेयर वाई एक्स. सपोज 2 इज इक्वल टू 2 और 2, ये दोनों सेम पॉइंट है ना. 2 2 सेम है, एक्स और वाई यदि सेम है तो ये 2 2 आ गया, ये भी 2 2 आ गया, और 2 2 इज इक्वल टू 2 2, तब ये सेम होता है. सो ये ऑर्डर पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑर्डर पेयर लिखते समय हमेशा ऑर्डर पेयर लिखते समय पहला जो ऑर्डर पेयर में होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है. तो ये हम लोग याद करना है. और इसी तरह हम लोग कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. नाउ वी विल सी एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. योर एक्सरसाइज 3.3. इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट. ये जो नीचे दिए गए पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस के ऊपर, ये हमें बताना है. एंड वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन. बाद में कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ये लोकेट करके चेक भी करना है. तो अभी पहला पॉइंट देखिए. फर्स्ट पॉइंट इज योर -2 4. नाउ सी, अभी हम लोग उनके कोऑर्डिनेट की जो साइन है उससे वो हम लोग पहचान सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में. हमने देखा है कि यदि हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो दिस प्लेन इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट क्वाड्रेंट इनटू 4 क्वाड्रेंट. उसमें ये एक्स ओ इधर एक्स डैश होता है, इधर वाई ओ वाई डैश होता है. तो ये पॉजिटिव ओ एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस है, निगेटिव वाई एक्सिस है. और इसमें ये जो क्वाड्रेंट होते हैं उसमें से ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके. इन दिस वे दिस प्लेन इज डिवाइडेड बाय एक्सिस इनटू 4 पार्ट. ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. तो इसी तरह यहाँ पे ये जो एक्सिस के कारण 4 पार्ट होते हैं. ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड और दिस इज योर फोर्थ.
ओके। और ये जो है ओरिजिन, दिस इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन, तो दैट्स वाई योर एक्स कोऑर्डिनेट साइन जो है वो प्लस होती है, और यहाँ पे y आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, इसलिए y कोऑर्डिनेट भी प्लस होता है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की साइन, दोनों क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों की साइन पॉजिटिव होती है। ओके, नाउ सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपका x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका माइनस होता है, और ये y पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, इसलिए y का कोऑर्डिनेट प्लस होता है। सो दैट मीन्स जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस और y कोऑर्डिनेट प्लस है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अभी ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, इसलिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव होता है, और ये भी y नेगेटिव y एक्सिस है, इसलिए y कोऑर्डिनेट भी माइनस। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट का साइन माइनस माइनस होता है, यानी कि x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट आल्सो नेगेटिव। सेम वे योर फोर्थ क्वाड्रेंट is enclosed by पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो इसलिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस होने के कारण आपका x कोऑर्डिनेट प्लस होता है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन y एक्सिस होने के कारण y कोऑर्डिनेट माइनस होता है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट माइनस होता है। तो इसी तरह हम लोग ये कोऑर्डिनेट की साइन से ही पहचान सकते हैं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट के ऊपर है। ओके, तो अभी ये जो पहला पॉइंट आपका -2 4, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस है, y कोऑर्डिनेट प्लस है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? दिस विल बी इन योर सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, सेकंड पॉइंट इज 3 -1, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो दिस पॉइंट विल बी इन योर फोर्थ क्वाड्रेंट। This is in your fourth quadrant. Am I right or not? X positive, Y negative in fourth quadrant. Next point is 3 -1 0. See here, Y coordinate of this point is 0. और हमें पता है जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर होता है। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, आपने देखा है प्रीवियस सेशन में। तो जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 था, दिस पॉइंट इज लाइज ऑन द x एक्सिस, तो देयरफॉर दिस पॉइंट इज लाइज ऑन x एक्सिस, दिस पॉइंट इज ऑन x एक्सिस। ओके, नाउ फोर्थ इज 1 2, x कोऑर्डिनेट प्लस है, y कोऑर्डिनेट प्लस है, और दोनों कोऑर्डिनेट का साइन यदि प्लस है तो वो होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज -3 -5, दोनों का माइनस माइनस साइन है, और माइनस माइनस साइन यानी कि x कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट माइनस यदि है तो वो होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। सो देयरफॉर दिस पॉइंट इज लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसी तरह हम लोग वो कोऑर्डिनेट के पॉइंट से ही हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा या किस एक्सिस के ऊपर होगा। सपोज वन ऑफ द पॉइंट इज सपोज 0 -3, इसी तरह का है। अभी इस पॉइंट में आपका x कोऑर्डिनेट 0 है, और हमें पता है कि जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है वो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होता है, तो दिस पॉइंट विल बी ऑन y एक्सिस, तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा? y एक्सिस के ऊपर होगा। तो हमने ये फाइंड आउट किया है। नाउ वी विल वेरीफाई बाय यूजिंग अ ग्राफ, तो ग्राफ के ऊपर हम लोग वेरीफाई करते हैं। सो ये 2 4 पहला पॉइंट आपका -2 4, तो ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग 2 4 प्लॉटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखाई है, ये आपका x एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस, और दिस इज योर y एक्सिस। ओके, तो योर फर्स्ट पॉइंट इज -2 4, x कोऑर्डिनेट -2 है, तो ओके x कोऑर्डिनेट -2 0, ये -2 यूनिट यहाँ पे जाना है। ओके, x कोऑर्डिनेट -2 होने के कारण फ्रॉम दिस ओरिजिन वी हैव टू गो 2 यूनिट अलॉन्ग नेगेटिव, x एक्सिस नेगेटिव होने के कारण अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट 4 है, तो फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव टू गो 4 यूनिट अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन अलॉन्ग y एक्सिस 4 यूनिट जाना है। सो दिस इज योर पॉइंट -2 4, और दिस -2 4 इज लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। हमने देखा था कि इट इज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, तो दिस इज वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज 3 -1, x कोऑर्डिनेट 3 है, फ्रॉम दिस ओरिजिन वी हैव टू गो 3 यूनिट। ओके, y कोऑर्डिनेट आपका -1 है, सो फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव टू गो अलॉन्ग नेगेटिव, माइनस साइन होने के कारण अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस यानी कि नीचे आना है, 1 यूनिट नीचे आना है। सो दिस पॉइंट
and this point is in which quadrant? 4. So the second point is 4 quadrant. हमने देखा था 4 quadrant. This is also verify. Then minus 1 0. X coordinate is your minus 1. X coordinate means 0 से minus 1 unit जाना है negative direction of x axis, and वहाँ से 0 unit along y axis. तो 0 unit means same point. So this is your point minus 1 0, and this is lies on the x axis. तो हमने बताया था this is lies on the x axis. Now 1 2, x coordinate 1. So from this origin we have to go 1 unit, okay, along positive direction. Y coordinate plus 2. So from this point we have to go 2 unit along positive direction of y axis. So this is your point 1 2, and this is in the first quadrant. This is also verified. Next is minus 3 minus 5. X coordinate minus 3 means from this origin we have to go 3 unit along negative direction of x axis. We get this point. Your y coordinate is minus 5. So from this point we have to go 5 unit along negative direction. माइनस 5 होने कारण नेगेटिव, तो ये माइनस 3 से हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट आना है. सो वी गेट दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज लाइज इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट. माइनस माइनस साइन है तो थर्ड क्वाड्रेंट में. सो इन दिस वे वी कैन वेरीफाई इट. ओके, नाउ फ्रॉम द ग्राफ above we can verify here that the point minus 2 4 lies in the second quadrant. हमने verify किया. The point 3 minus 1 lies in the fourth quadrant. The point minus 1 0 lies on the negative x axis and x axis. The point 1 2 lies in the first quadrant. Minus 3 5 lies in the third quadrant. In this way we can verify it here. Okay, again one more example. Plot this point. अभी हमें ये पॉइंट प्लॉटिंग करना है. ओके, plot the points xy in the given following table on the plane and choose a suitable unit of distance on the x axis. अभी ये पॉइंट प्लॉटिंग करना है माइनस 2 8. इसका मतलब x कोऑर्डिनेट माइनस 2, x कोऑर्डिनेट माइनस 2, y कोऑर्डिनेट 8, यानी कि 2 माइनस 8. पहला पॉइंट आपको प्लॉटिंग करना है 2 माइनस 8. सेकंड पॉइंट माइनस 1 7. थर्ड इज 0 minus 1.25. नेक्स्ट पॉइंट इज 1 3 एंड नेक्स्ट इज 3 minus 1. तो इसलिए हमें क्या करना होगा? ड्रॉ एक्स ओ एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई एज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड मार्क देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ एज अ ओरिजिन. तो हमें ये दोनों एक्सिस ड्रॉ करना है. इसी तरह ये दोनों एक्सिस ड्रॉ किए. दिस इज एक्स ओ एक्स डैश. This line is your x dash o x and this line is your y o y dash, like this. ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर एट ओरिजिन, ये ओरिजिन मार्क किया. ओके, अभी ये पॉइंट हमें प्लॉटिंग करना है. योर फर्स्ट पॉइंट इज माइनस 2 8. तो x कोऑर्डिनेट माइनस 2 है. x कोऑर्डिनेट इज योर माइनस 2. सो दैट मीन्स व्हाट? फ्रॉम दिस ओरिजिन वी हैव टू गो 2 यूनिट अलॉन्ग नेगेटिव साइन है, इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जाना है. तो ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में 2 यूनिट जाना है. 2 यूनिट यहाँ पे आ गए हम लोग, लाइक दिस. ओके, तो ये 2 यूनिट आने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा. अभी y कोऑर्डिनेट आपका 8 है तो और प्लस 8 है, तो फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव टू गो योर 8 यूनिट अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. क्योंकि प्लस साइन है, y कोऑर्डिनेट प्लस 8 है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स y एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस कितना यूनिट जाना है? 8 यूनिट. यहाँ पे 8 है आपका. सो दिस इज योर पॉइंट माइनस 2 8. सो वी गेट दिस पॉइंट इज योर माइनस 2 8. करेक्ट. नेक्स्ट इज माइनस 1 7. योर x कोऑर्डिनेट माइनस 1 है. x कोऑर्डिनेट ये हो गया. नेक्स्ट पॉइंट वी विल शो हियर. x कोऑर्डिनेट माइनस 1 है, तो ओरिजिन से x एक्सिस के ऊपर नेगेटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट जाना है. तो 1 यूनिट हम लोग यहाँ पे आना है. फ्रॉम दिस ओरिजिन वी हैव टू गो 1 यूनिट अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. नाउ योर y कोऑर्डिनेट इज 7. सो वी हैव टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट, वी हैव टू गो 7 यूनिट अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, बिकॉज y कोऑर्डिनेट इज प्लस 7. तो प्लस 7 होने के कारण पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे 7 यूनिट जाना है यहाँ तक. सो this is your point what? Minus 1 7. In this way we get minus 1 7. Next point is 0 minus 1.20. X coordinate 0 है. 0 means origin.
एक्स एक्सिस ऊपर 0 यूनिट जाना है, देखिए वही पॉइंट। और वाई कोऑर्डिनेट आपका -1.25 है, -1.20, तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस है, तो हमें अलोंग निगेटिव डायरेक्शन 1.25 यूनिट जाना है। तो ये ओरिजिन से वाई एक्सिस के ऊपर अलोंग निगेटिव डायरेक्शन में 1.25, ये 1 है, उसके बाद 0.25 यहाँ पे आपका पॉइंट होगा। तो दिस इज योर पॉइंट 0 minus 1.25. Okay. Next point is your 1 3, x coordinate 1 प्लस 1 है x कोऑर्डिनेट, इसलिए ओरिजिन से हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस 1 यूनिट जाना है। ओके, वहां से अभी y कोऑर्डिनेट 3 है, प्लस 3 होने के कारण अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस 3 यूनिट जाना है। तो ये जो 1 है यहाँ से 3 यूनिट जाना है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट 1 3. In this way we plot here 1 3. Next point is 3 minus 1. Your x coordinate is plus 3. So from this origin we have to go 3 unit along positive direction. x coordinate 3 होने के कारण, प्लस 3 होने के कारण ये ओरिजिन से x एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। ओरिजिन से 3 यूनिट यहाँ पे हम लोग आ गए। अभी y कोऑर्डिनेट आपका -1 है, y -1 होने के कारण निगेटिव डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस 1 यूनिट जाना है। तो हम लोग यानी कि नीचे 1 यूनिट तक जाना है यहाँ तक। सो वी गेट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज योर 3 minus 1. So in this way we will plot the points here. Okay, now in this way we will plotting the points, given points on the Cartesian planes. So friends, I think you are understanding each and everything. If you have any doubt, then ask me on my WhatsApp number 9420439784. Okay friends, thank you. Have a nice day. Thank you.